بزرگان دین یہی چیز کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اللہ کے نبی، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کا انعقاد عمل میں لایا، جس کو میں اور آپ صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کیٹیگریز تھی صحابہ کی، بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کی مشغولیات الگ تھیں، جن کے لیے جہاد میں جانا بہت ضروری کام رکھا گیا تھا، بعض کے لیے خود مکہ اور مدینہ کے اطراف میں رہ کر ایمان اسلام کو بچانے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی باتوں کو نوٹ کرنے کا کام دیا گیا تھا، بعض صحابہ ایسے تھے کہ اپنی زندگی صرف نبی کے لیے کر دیے تھے، بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ صرف اصحاب صفہ، جن کا لقب ہی پڑ گیا صفہ والے، یعنی مطلب ایسی جگہ مدینہ میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے میں لگ گئے، پھر دوسری مشغولیت ان کی نہیں رہی۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں یہ مدرسہ، یہ مسجدیں، یہ اسی طریقے سے خانقاہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوئی اس سینچری کی چیز نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ 1400 سال پہلے کی ہے۔ آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں اللہ بھیج دے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اگر اللہ کے نبی پھر سے اس دنیا میں تشریف لائیں تو کسی پاشا کے گھر کو، کسی عبداللہ بھائی کے گھر کو، کسی نذیر بھائی کے گھر کو نہیں جائیں گے، بلکہ وہ آئیں گے یا تو مسجد کے دروازے پر یا پھر مدرسے کے دروازے پر، جہاں پر ان کے وارثین پڑھ رہے ہیں، جہاں پر قال اللہ قال الرسول کی تعلیم ہو رہی ہے، جہاں پر انسان کو انسانیت میں ڈھالا جا رہا ہے، جہاں پر مسجد میں حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی آوازیں گونجا کر رب کی ربوبیت کو ایک نہایت اعلیٰ بتانے کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ایک یہودی نے سچ کہا تھا، مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں چونکہ ان کے پاس 5 وقت مسجد کو مسلمانوں کو بلانے کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے، اور اس سے بڑا سسٹم جمعہ کا ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی اعلان کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم مسلمان نہ ہی نماز کے پابند بن سکے، الا ماشاءاللہ ہر چیز میں تھوڑے الگ ہوتے ہیں۔ خود خدا نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے ہی بندے ہوتے ہیں میرے جو میرے ہوتے ہیں، ورنہ تو میرے ہونے کا ڈھونگ رچتے ہیں، میں تیرا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایک ایسے بوائے فرینڈز معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اپنی لڑکی کو یہ ثابت کروانے کے لیے تنگ آ گئے ہیں کہ میں تمہارا ہوں، اور وہ سامنے والی لڑکی یہ سمجھ کر بھی اعلیٰ معیار پر ہے کہ تم میرے نہیں ہیں۔ یہ والا معاشرہ زمانے کا ہے۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ کون میرا ہے، کون میرا ہونے کا ناٹک کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں انتر ہے، بڑا فرق ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے اور یہ خانقاہیں، یہ بزرگوں کی بیٹھکیں، یہ مشائخ کی جلوہ افروز ایک جگہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جس دن ہمیں عقل آئے گی انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، اس دن سے ہندوستان میں مسلمانوں کی عقلیں صحیح کام کرنا شروع کر دے گی۔ عقل ہمیں اب آ رہی ہے جبکہ وقت بل پاس ہو گیا ہے اور نافذ بھی ہو جا رہا ہے تھوڑے تھوڑے علاقوں کے اندر۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کڑپا کے کسی علاقے کے اندر ایک مولانا نے مسجد کے اندر وقت بل کے تعلق سے دھنا دھن تقریریں کر دی، فوراً مولانا کو اٹھا کر جیل بھیج دیا گیا۔ کیا کر رہے تھے مسلمان؟ اتنے بھی چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان، اتنے بھی، میں کیا کہوں، منہ چھوٹا بڑی بات ہو جائے گی، تکلیف ہوتی ہے دل پہ۔ کیا اتنے ہم بزدل بن گئے ہیں؟ کیا ہم اتنے کم کیٹیگری میں پھنس چکے ہیں کہ ہمارا ایک رہبر جو ایک ناجائز لوگوں کے ہاتھ پھنس گیا ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ دھرنا مچاتے، روڈ بلاک کر کر بیٹھ جاتے، یہ شخص ہمارا ہے، یہ شخصیت کو پھر سے لوٹا دیا جائے؟ جب تم اس ہندوستان کے اندر مسلم کے ساتھ ساتھ تم بڑی بڑی پارلیمنٹوں کے حلقوں میں بیٹھ کر اور اسی طریقے سے اسمبلیز میں بیٹھ کر
नाजायज बिलें पास करते रहोगे और नाजायज हुकूमतों के दायरे को तोड़कर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाते रहोगे, क्या मुसलमान बर्दाश्त करेगा इसको? भाई जितना हक तुम्हें यहां पर जीने का है उससे 2% या 2 कदम आगे हमारा हक है मुसलमानों का जीने का। तुमने क्या किया है हिंदुस्तान की आजादी में? तुमने उतना ही किया है जितना कि तुम्हारे आबा व अजदाद दिल से मानते हैं कि हमने इतना ही किया है। तुम ये मत समझो कि हमने बहुत किया है। बाद लोगों ने तो यहां तक कहा कि खून के 2 कतरे इनके खतना के वक्त क्या जमीन पे टपक गए कि इन लोगों ने तो कह दिया कि इस मिट्टी के अंदर हमारा भी खून शामिल है। उस कमबख्त को ये मैं कहना चाहता हूं, खून की नदियां बही हैं हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। दिल्ली से लेके कहां कहां तक की 2-2, 8-8, 10 किलोमीटर की रोडों पे, झाड़ों पे उलमा को टंगा दिया गया था, जिनको बांधकर उनकी जिंदगियां खत्म कर दी गई थी, बीवियों को बेवा कर दिया गया, बच्चों को यतीम कर कर रोड पे फेंक दिया गया था। अब वही मौका अब हमारे ही अफराद के साथ लड़ने का आ गया है, जो इस जमाने में हिंदुस्तान की हुकूमत के पीछे जो बैक में होकर पूरी के पूरी बीजेपी को सपोर्ट करती है। नहीं डरना है। जब वो लोग अपने आप के हुदूद को पार कर गए हैं, क्या अब भी इनके नाम लेने से इस मिंबर से हम कतराएंगे? हम वैसे उलमा नहीं हो सकते, ये याद रखें। जब तक उनकी खामोशी के साथ जो काम हो रहे थे हमने तस्लीम कर लिया था, मगर याद रहे शरीयत की मुदाखलत के बाद, सारी चीजों की मुदाखलत के बाद, औकाफ की जमीन, जिस जमीन को हमारे बाप दादाओं ने हमें गिफ्ट दिया है, हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जान लगाएंगे, हम अपना माल लगाएंगे, हम अपने उलमा की आवाज पर लब्बैक कहेंगे। हमारी जान जाए परवाह नहीं है, ना हमारी बीवियों की हमें परवाह होगी, ना ही हमारे बच्चों की हमें परवाह होगी। अगर हमारी मस्जिद ही ना बच सकी, ना हमारे मदारिस बच सके, ना हमारे खानकाहें बच सकी, ना ही हमारी दरगाहें बच सकी, ना ही हमारे कब्रिस्तान बच सके, तो हम इस जगह पर जी के करे तो करे क्या? एक सबूत साबित कर कर हम तलवे चाटने वाले नहीं, बल्कि हुकूमत की आंख में आंख मिलाकर ये साबित कर कर इस दुनिया से जाएंगे। इस हिंदुस्तान की 6 फीट की जमीन में दफन होंगे कि जिस तरह तुमने अपनी जिंदगी लगाई इन मुसलमानों को खत्म करने के लिए, इनकी शरीयत में मुदाखलत करने के लिए, हम भी आज तैयार हैं कि तुम्हारे सामने सीना सुपर होकर खड़े होने के लिए। तुम कितने बाजियां चल सकते हो चल लो, मगर जब मुसलमान अपनी सच्चाइयों पे उतरना शुरू कर देता है तो याद रखें मेरे भाइयों, उसके जिस्म में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ रहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज उसकी रगों में शामिल है। हजरत उमर का देहान, हजरत उमर की फौलादी और हजरत उमर का जुनून उसकी रगो पा में हमेशा चल रहा है। इन्हें ना छेड़ो। हाँ, कुछ देर की खामोशी है, ये फिर वक्त आएगा। अभी तो कुछ देर इनका चल रहा है, फिर दौर हमारा आएगा। ये ऐलान के लिए जब मुसलमान उठ जाए, फिर याद रखना मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की सड़कें कम पड़ जाएगी। आप ताज्जुब करोगे कि इतनी कसीर आबादी में मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ 10% थे, ये इतना कितना भर गया। आज भी हमारे अंदर भाईचारगी है। हम मुस्लिम के अलावा हमारे हिंदुस्तान के अंदर बसने वाली छोटी छोटी कौमों को साथ लेकर रोडों पर उतर जाएंगे। फिर तुम अपने फैसले नाफिज करना। तुम हमारे सीनों पे गोलियां ही चला सकते हो, दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते हो। एक ने तो कह दिया हम हिंदुस्तान से अनकरीब इस्लाम को मिटाएंगे। खुदा की कसम, तुम जैसे फिरौन आज से कई सौ बरस आकर चले गए। तुम जैसे जाहिल कितने की साल पहले ये दावा कर दिए थे कि हम इस्लाम को मिटाएंगे, वो खुद मिट गए, नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। हाँ, तुम्हारी अकल को बताने के लिए, तुम्हारी अकल को फिर से लाने के लिए एक अल्लाह ने इबरत के लिए फिरौन जो तुम्हारा बाप है उसको छोड़ रखा है ताकि तुम इससे इबरत लो। आज की हुकूमत के पास उतना पैसा नहीं है जितना कि एक
आदमी फिरौन के पास उतनी सल्तनत, उतना मालो दौलत होने के बावजूद भी जब अल्लाह के अजाब को आंखों के सामने देखता है तो ये कहता है, अल्लाह मैं तेरा मुसलमान बंदा हूं, अल्लाह मैं अब ईमान लाता हूं। अल्लाह कहता है, अल्लाह अब अल्लाह याद आया है, अब तो तुझे ये पानी डुबो कर गर्क कर देगा। उसकी आसमान छूती बुलंदी, उसके अंदर का पावर तुम्हारे पास तो उतना नहीं है। तुम डरो उस ईश्वर से, तुम डरो उस भगवान से, तुम डरो उस अल्लाह से, तुम डरो उस गॉड से जो सबका अल्लाह है, जो सबका भगवान है, जो सबका ईश्वर है, जो सबका बड़ा बैठा हुआ है, वो तुमको देख रहा है। अल्लाह कहता है, मैं गुनाहों के साथ तो गुनाहों के साथ तो सल्तनत चलने देता हूं, मगर अब जुल्म की बारी आती है तो मैं ऐसी जगहों से तुम्हें पकड़ूंगा, चाहे वो मुसलमान हो या कि गैर हो, फिर मैं सारी जिंदगी जो तुम पिछले किए हो, जिसको तुम भूल गए हो, वो पूरा निकालूंगा। और उस वक्त बेबसी, लाचारी और इसी तरीके से तुम्हारे सामने एक जुल्मत की आग के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ सकती है। ये मैं नहीं, ये तुम्हारे ग्रंथों के अंदर भी साबित है। पढ़ो तो सही यजुर्वेदा, इंसान की जिंदगी किस तरीके से जीना है, ना ही उसके अंदर भेदभाव की बात की गई है। चाहे मुसलमान हो के ईसाई, सिख हो के हिंदू हो, सबका एहतराम, सबके माबदगाहों की एहतराम, इज्जत, ये सबके लिए लाजिम है। आपने कहीं देखा मुसलमानों को किसी मंदिर के ऊपर हमला करते हुए? नहीं ना। क्यों तुम हमारे मस्जिदों के ऊपर औकाफ के बिलों को लाकर यह साबित कर रहे हो कि हम अब इनकी मस्जिदों के ऊपर हुकूमत को कायम करेंगे? इसीलिए ना हम कम मेजोरिटीज में हैं, इसीलिए ना हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इसीलिए ना अभी हमारे उलमा की जुबान बंद है। जिस दिन इनकी आवाज खुल जाएगी, फिर देखना हिंदुस्तान की रोडों पे, हिंदुस्तान के मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, फिर तुम्हारा कोई बंदा नजर नहीं आएगा। क्यों? हमारे अंदर आज वो जुनून है, हम जाग चुके हैं, हमारा मुसलमान जाग चुका है, ये साबित कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इंतजार करो उलमाए हक का, उलमाए बड़ों का, अपने अकाबिरीन का। ये जिस वक्त ऐलान करें, ये जिस वक्त तुम्हें आवाज लगाएं, चाहे वो प्रोटेस्ट के एतबार से हो, चाहे वो एक मिल्ली तंजीम के एतबार से धरना मचाने की शक्ल में हो, अब ये मत सोचो कि अगर मैं जाऊं तो जेल में चला जाऊंगा। अब लब्बैक कहकर आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हारे घरों के ऊपर आफत आती, अगर तुम्हारी मिल्कियत पे अगर आफत आती, अगर तुम्हारी जायदाद पे तुम्हें बात की जाती, तुम्हारी प्रॉपर्टीज को ऐसा कब्जा किया जाता, तो तुम्हारे अंदर का इस्लाम नहीं जागता, तुम्हारे अंदर का एक ईमान का पावर नहीं जागता, तुम्हारे अंदर का एक आदमी नहीं जागता। ऐसे ही नहीं बल्कि 100 जान कुर्बान करो अल्लाह की राह में, मस्जिदें बचाओ, मस्जिदों के साथ साथ इन खानकाहों को, इन दरगाहों को और इन कब्रिस्तानों को आप जानकर हैरान होंगे। अगर हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बिल के निफास का अगर अमल पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे, मेरे अजीज दोस्तों याद रखना, हमारी ही कब्र को, हमारी ही कब्र में हमें जाने के लिए 10 से 20 हजार रुपये का खर्च हमारी ही जमीन में देना होगा। ये कहां का तुम इंसाफ ला रहे हो? याद रखो, इन्हीं मदारिस के जरिए से, इन्हीं मसाजिदों के जरिए से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमन का, अमान का और बेहतरीन सेफ सोसाइटी का माहौल पैदा करने के लिए सारों को जगाया गया और आपसी मोहब्बतों को रचाया गया। आपसी मोहब्बतों के खलजान को दूर कर कर उनकी मोहब्बतों को सरेआम लाया गया। आप जाकर देखें किसी और कंट्री के अंदर जितना हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमान सारे लोग मिलजुल कर गुजारते हैं, ऐसा मंजर आपको नजर नहीं आएगा। यह हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत की आंखें हमें देखा नहीं जा रही है, हमको ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज नए नए चीजें जिसके अंदर मुदाखलत कर कर इतनी बेहूदगियां, इतनी बदतमीजियां, इतनी नालायकियां, ये हम कहां तक बर्दाश्त करें? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथ में याद रखो
यही मदारिस इस्लामिया थे जिसकी वजह से सारे उखुवत का पैगाम दिया गया, मोहब्बत का दर्स दिया गया। आज इन्हीं मदारिस के ऊपर ये गरीब लोगों की नजरें जमी हुई है। इसीलिए अगर तुम्हें जब भी ऐलान किया जाए अपने आप को लब्बैक कहकर उठो। ये वक्त का तकाजा है जिस वक्त हमारे उलमाए किराम हिंदुस्तान की आजादी के लिए उस वक्त जो उस वक्त उलमा ने आवाज लगाई, याद रखें उलमा के साथ साथ नौजवान भी शामिल थे। सिर्फ उलमा नहीं थे, मुसलमान दिलेर भी थे जो सीना सामने रखकर कहा था गोलियां पहले यहां बरसे फिर उसके बाद हिंदुस्तान पे नजर पड़े। आज ये आपको सिर्फ औकाफ का मसला नहीं है, ये मस्जिदों का मसला नहीं है, ये खानकाहों का, दरगाहों का, कब्रिस्तानों का मसला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सारी चीजों से हटाकर इनको निहत्ते कर कर इनको एक तरह से कमजोर बनाना है। इनके अंदर फकीरी को लाना उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम है, उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब है। आप जानते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कर कर हमारी मुसलमानों की जड़ों को कमजोर कर कर, खोखला कर कर हम तमाम को हिंदुस्तान के अंदर बेबस करना चाहते हैं। कितनी लाखों की मील हमारी जमीनें औकाफ की मौजूद है। मैं मानता हूं इस बात को, मैं सरे मुंह तस्लीम खम करता हूं कि हम मुसलमानों की भी बहुत बड़ी गलती थी, मगर याद रहे वो उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती कोई लोग ये समझ गए हैं कि इन्होंने गलती की है अब इसके ऊपर हम सजा दें। ये सजा देने वाले कौन हो सकते हैं? ये औकाफ के मामले के ऊपर बिल को पास करके अपना हथकंडा जमाने वाले कौन हो सकते हैं? जब तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 39+42 नहीं मालूम है, जब तुम्हारे अंदर इस बात का सबूत नहीं मालूम है, भीमराव अंबेडकर साहिब ने कहा था कि तुम अपने माबदगाहों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी मंदिरों को अपने पास रखकर तुम अपनी इबादतों में मशगूल रहो, चाहे वो मुसलमान हो कि सिख हो। तुम्हें किसने हुक्म दिया? तुम्हें किसने ये इतनी जुर्रत दे दी? यही ना हिंदुस्तान भीमराव अंबेडकर के साहिब के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि तुम्हारे सावरकर की औलादों से चल रहा है। यही तुम बताना चाहते हो तो हम भी बताएंगे कि अब मुसलमान क्या है, हम भी बताएंगे कि अब हमारे अंदर का खून क्या है, अब हम भी बताएंगे हम भी सहाबा को मानने वाले हैं, हम भी बताएंगे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं, हम भी बताएंगे एक रब की जब मस्जिद बनाई जाती है उसको क़यामत की फजर तक तोड़ा नहीं जाता है, उसको क़यामत की फजर तक मस्जिद ही रख दिया जाता है। तुम खुश हो गए हो बाबरी मस्जिद को अपने पास लेकर, आज भी हम यही कहते हैं, आने वाली ये छोटी नस्ल को यही समझाएंगे बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी। तुम एक भी मस्जिद हमसे नहीं लिए हो, ये तुम्हारा खुशफहम अंदाज है, ये तुम्हारी दिल का जुनून है कि तुम ये कह रहे हो ये बाबरी मस्जिद को हमने ले लिया। कहां से लिया है? बस अल्लाह हम मुसलमानों के गुनाहों की थोड़ी सजा दे रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर एक गुनाह के सबब अजाब को मुसल्लत ये तुम्हारी हुकूमतों को हम पर डालकर कर रहा है। हम अल्लाह से माफी मांग चुके हैं, हमारे अल्लाह हमारे हो चुके हैं, हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा चुके हैं। अब अल्लाह की मदद हम मुसलमानों के लिए आने ही वाली है और तुम्हारी जलालत और तुम्हारी परेशानी और तुम्हारी जिल्लत हम नहीं तो सही हमारी ये औलाद देखेगी इंशाअल्लाह। जिस तरीके से फिरऔन को बात की कौम ने, सारे लोगों ने आज जिल्लत के साथ पड़ा हुआ देखा है, हम भी देखेंगे। याद रहे मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये मामला संजीदगी से हल करने का नहीं है। कोई अगर ये कह दे कि होने दो जो हो रहा है, मेरे भाइयों मैं साफ कहूंगा कि उसको फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर फिर से इस्लाम में आना चाहिए। बाज़े लोगों ने तो यहां तक कह दिया मौलाना इतना बोलकर, इतना समझाकर, इतना सब कर कर क्या फायदा हो रहा है? अब गई तो गई है, नहीं गई है। आज भी हमारे मुसलमानों के हाथ में औकाफ की एक ईंट तो दूर की बात, एक ईंट तुम नहीं ले सकते। ये कोई जल्दबाजी का, कोई जुनून दिलाने वाला बयान नहीं है।
उलमा उतर चुके हैं, बस आपकी जिम्मेदारी है इन उलमा की आवाज पर लब्बैक कहकर उतर जाओ रोडों पर, उतर जाओ सड़कों पर। कुछ नहीं होगा, 2 दिन पेट में खाना रह जाए, अल्लाह की मस्जिदों की हिफाजत के लिए तुम उतर चुके हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए अपना सारा दिखा देगा। ये इरादे कर कर जाना, ये नीयत कर कर जाना, जहां कहीं पर भी मैं रहूं, ये वक्त बिल को ना ही मैं दिल से मानता हूं, ना ही आंख मूछ कर मानता हूं। मैंने सुना कि 2-4 लोग बैठकर ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये डिबेट कर रहे हैं, हालांकि मालूम है उनकी डिबेट उनकी चाय के कप से आगे नहीं जाएगी, उनकी डिबेट उनके मुंह से आगे नहीं जाएगी, उनकी डिबेट उनके आए हुए न्यूज़पेपर जो सुबह है उससे आगे नहीं जाएगी। वो लोग ये कह रहे हैं औकाफ का जो बिल नाफिज हुआ है हम इसको मानते हैं। वजह क्या बताई गई है? मुसलमानों के पास औकाफ की इतनी जमीन थी, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना ही उनके वो है, ना ही मुसलमानों की हमदर्दी के लिए कोई चीज तैयार किए हैं। हम तस्लीम करते हैं हमारी गलतियां हुई हैं, मगर हम ये तस्लीम नहीं करते कि औकाफ की बिल के ऊपर तुम्हारा हक जम जाए। आज इन औकाफ की बिलों पर उनका हाथ जमा दिया जाएगा तो याद रखना मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आने वाले हिंदुस्तान में आपके जाती घर भी नहीं बच सकेंगे, आपका असली मकान भी नहीं बच सकेगा, आपकी रिहाइशगाह भी नहीं बचेगी। जब अल्लाह के घर नहीं बच सकेंगे तो अल्लाह तुम्हें भी बाकी नहीं रखेगा। उठाओ कदम, ये मुसलमानों की जागीर है, ये किसी की जागीर नहीं है, ये सच्चाई का सबूत देने का वक्त है। अभी भी मुसलमान अगर आंख बंद कर कर अपने घरों के अंदर अय्याशी मस्त में गुजरता है तो याद रखना मेरे भाइयों, अंदलुस को याद करना, कई बरस हुकूमत के बावजूद आज सजदे की प्लेस बाकी नहीं है। वहां क्या हुआ? एक मर्तबा का वाकया है, एक बंदे ने पूछा कि यहां पर मस्जिद कहां है, तो वहां के बाशिंदे ने कहा मस्जिद मत ढूंढो, मदरसा मत ढूंढो, खानखा मत ढूंढो, ना ही यहां पर हमें दी गई औकाफ की जमीनें ढूंढो, कोई चीज मत ढूंढो। हम यहां पर जिस वक्त यहां की हुकूमत अपने पैर जमा रही थी उस वक्त हम ख्वाब गफलत में सोए हुए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों का एक पावरफुल अंदलुस मुल्क आज जाकर देखिए कि किस डगर पर पड़ा हुआ है। आप नमाज के लिए इतना छुप छुप कर अपनी इबादतें करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में भी हुआ है, आज हिंदुस्तान के कई रियासतों के अंदर अजान पर पाबंदी लगा दी गई है। हमने कभी कहा है कि तुम्हारे हनुमान चालीसा से हमारे कान दर्द होते हैं? नहीं कहा है और कहेंगे भी नहीं। यह हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, यहां हिंदू मुसलमान को अपनी जात के साथ जीने का हक है। अगर तुम अपना पावर दिखा सकते हो तो मुसलमान तुम अपने साथ हुकूमत का पावर बताओगे, हम अपने अल्लाह का पावर बताएंगे। अल्लाह ने कहा मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये अच्छे से सुन लो, आप शराबी हो या फिर जानी हो या फिर जितने बड़े तुमने गुनाह किए हो या फिर मेरे गुनाह हो, एक मर्तबा अगर अल्लाह के सामने हमने हाथ उठाया, अल्लाह बस अब माफ फरमा दे, मेरी जिंदगी जैसी गुजरी गुजर गई, आज से मैं तेरा तू मेरा, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, अल्लाह की जात जलाल में आएगी और कहेगी अरे बंदे तूने मुझसे तौबा की है, बता तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा अल्लाह हमारे पास मौजूद है। अरे तुम्हारी हुकूमतों को बदलना, तुम्हारे तख्तों को उलटकर फेंकना हमारे एक बालिग बच्चे की एक तहज्जुद की दुआ की आंसू का असर है। अगर तुम्हारी तख्ते नहीं बदल दे, अगर तुम्हारे पावर को ना बदले तो ये फिर हमारे लिए सच्ची मुसलमानी कहलाने का तो हमें हक ही नहीं है। अगर ये मदारिस ना बचे, अगर ये मसाजिद ना बचे, कहां जाओगे अल्लाह से मांगने के लिए? घरों में मांगोगे, घरों में खवातीन मांगती है, मस्जिद में आकर अल्लाह का बंदा मांगता है, वो भी उनको कुछ उज्र की वजह से मस्जिद में मांगने का हक है, वरना तो सबके सब हाथ उठाकर अल्लाह के सामने कहें अल्लाह हम पर अब आफत आ पड़ी है, मगर याद रहे हमने अल्लाह गुनाह किया है, सारे बड़े गुनाह किए हैं, मगर तेरे गफूरुर रहीम होने को हमने नहीं भूला है। तेरा कलाम कहता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह,
تیری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہمیں معلوم ہے ہمارے بڑے مشائخ نے, ہمارے بڑے علماء نے ہم کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے والے ہیں. سچائی کے ساتھ ہم اللہ سے معافی مانگ کر علماء کی ہاں میں ہاں بھرو اور نکل آؤ, اور اس بل کو ختم کرنے تک اپنے گھروں کو مت لوٹو. یہ ثابت کرو کہ تمہارے اندر وہ پاور ہے تو ہمارے اندر ایمان کا پاور ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, اب بتاؤ, ان کو معلوم ہے ہندوستان کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, بلکہ ان کے ابا یہودی نسل کی بات کر رہا ہوں. ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے. ہسٹری آف اسلام اگر آپ پڑھیں گے تو بیسک چیز آپ کو یہ ملے گی, اسلام ختم کرنا ہے, مسلمانوں کو ختم مت کرو, ان کے اندر کے ایمان کو ختم کرو, ان کے اندر کے تعلیمی پالیسیز کو ختم کرو, ان کے اندر کے جذبے کو ختم کرو. ایسے ہی کر کر پورے معاملے کو بگاڑ دیا گیا. کتنی چیزوں کو ایسے ہی کر کر ختم کر دیا گیا. مسجدیں آہستہ آہستہ اپنے اندر لو, پھر لڑائی میں ان کو لگاؤ, پھر آہستہ آہستہ ان کی شریعت کے اوپر ہلہ بول دو, پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی آہستہ آہستہ بڑی بڑی عمارتوں کو قبضہ کرنے کے شکنجے جماؤ, پھر ان کو ڈیوائیڈ کرو, پھر لڑاؤ, پھر جھگڑوں میں مصروف کرو. ایسے ہی کر کر کے خود مسلمانوں کے اندر دو پارٹیاں ہو جائیں گی. ایک کہے گی ہاں, ایک کہے گی نہ. جو نہ کہے گی انہیں روڑوں پر مار دو, جو ہاں کہے گی ان کے منہ میں اور ذلت کا پیسہ ڈال دو اور ان کے منبروں سے اعلان کرواؤ یہ حق ہے, یہی چلنا چاہیے. ہم تمہارے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کی قسم, اگر تم ہمیں سونے کے پانی سے بھی نہلاؤ گے, ہم ایک مسجد کی اینٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بولو انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو ثابت قدم رکھیں گے اور بچائیں گے انشاءاللہ. آپ جان کر حیران ہوں گے, اتنے بڑے بڑے علماء, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ, یہ کہاں سے پلے, یہ کہاں سے اپنے اندر اتنے بڑے امام ہونے کی لیاقت کو پیدا کر لیا. یہ مسجدوں کے اندر چلنے والے مکتب کے ذریعے سے اتنے بڑے عالم بنے, اتنے بڑے فقیہ بنے, اتنے بڑے محدث بنے, اتنا بڑا ان کا نام ہوا. آپ جب کہ یہ مسجد نہ بچے, آپ جب کہ یہ مدرسہ نہ بچے, جب کہ یہ قبرستان مسلمان کا نہ بچے, یہ درگاہوں کی جگہ نہ بچے, ابھی بھی مسلمان, اللہ معاف کرے مولانا, آپ منبر پر بیٹھ کر درگاہوں کے بچانے کی بات اللہ کی قسم کہوں گا, مرتے دم تک کہوں گا, درگاہوں کو بھی بچانا تمہاری ذمہ داری ہے, درگاہوں کی آس پاس کی زمین بچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اب فی الحال جتنا نماز پڑھنا فرض ہے, ایسے ہی اس زمین کو بچانا فرض ہے. اٹھو اپنے جگہوں سے اور یہ ثابت کرو, یہ درگاہیں بھی ہماری, لڑیں گے بعد میں, جو ناجائز ہے, شرک ہے, کیا ہے وہ الگ معاملہ ہے. مسجد کو بچانا, مدرسوں کو بچانا, یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. اس کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کرو میرے عزیز دوستو بزرگوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آخری اس جمعہ کے پیغام میں یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کئیوں کروڑوں لاکھوں خرچ کر دیے اپنی زندگی بنانے کے لیے. اب مدرسوں کو بچانے کی فکر کرو, اب مدرسوں کی تعمیر کو مضبوط کرو, اب مسجدوں کی دیواروں پہ پینٹ لگاؤ, اب مسجدوں کو بہترین سجاؤ. یہ مسجدیں خالی دکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کی آنکھوں میں چپ گئی, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا اب مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, لگا دو ان کے اوپر ظلم جتنا کرنا ہے. میں مالداروں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا, اللہ کے لیے آپ کے مال کا 50% اب مسجدوں کو لگے, اب مدرسوں کو لگے. کیوں؟ اگر اب نہیں لگے گا تو یاد رکھنا, تم تو جاؤ گے مرنے کے بعد, قبرستان مسلمان کے دفن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمہاری اولاد کبھی رام ہو جائے گی, کبھی شامو ہو جائے گی, کبھی کوئی بن کر اس دنیا سے جائے گی. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب اوقاف کی زمینوں کو بچانے کا حق آ گیا. جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو شریک کرو. جب مسجدیں نہیں بچے گی تو تم بھی نہیں بچو گے. صنم کہاں تم کدھر کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے لاؤ اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اپنے اللہ کو منانے کے خاطر اپنے رب کو یہ کہو, اے اللہ میری مسجدیں جو تو نے مجھے ہمت دے کر, طاقت دے کر میرے ہاتھوں سے تعمیر کروائی, میں اس کو میں بھی جانے نہیں دوں گا.
आने वाली नस्ल तक के लिए बाकी रखूंगा। ये अज़म आज अगर किसी मुसलमान के दिल में नहीं है तो वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है। मैं आखिर में यही बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। अपने अल्लाह के लिए मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, दरगाहें बहुत अहम है। लोग ये कह रहे हैं अगर ये चले भी जाए तो हम अपने घरों में इबादत करेंगे। भाइयों बुजुर्गों, उम्र छोटी है मगर बात बड़ी कर रहा हूं। आपके घर भी नहीं बचेंगे। आपके घर के छोड़ दो, आपके घरों के अंदर के अहलो अयाल तक को काट कर डाल दिया जाएगा। हिंदुस्तान वो डगर पर आकर खड़ा हुआ है। जागो मुसलमानों, अपने अल्लाह के लिए जागो। ये मत सोचो कि औकाफ की जमीन ये मोदी की जागीर है, ये औकाफ की जमीन योगी की दी हुई चीज है, ये औकाफ की जमीन अमित शाह की देन है, बल्कि ये हम मुसलमान फ्रीडम फाइटरों की, हमारे मुगल सल्तनत की देन है, हदिया है, कब्जा है। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे लिए पुरअमन मोहब्बत की चीज है, जिसकी वजह से हमारा आज मुसलमान कहलाना अमन के तरीके से बाकी है। इसीलिए गुजारिश है कि जहां कहीं पर भी आपको इस तरीके की बात की जा रही है, अपने अल्लाह के लिए अपने आप को साबित करो और ये कहो, साथ ही साथ दुआओं का भी असर होता है। अल्लाह से कहो, अल्लाह वाकईतन हमने गलती की है, हमारी आंखें तेरे नाफिज करने वाले जालिम बादशाह के जरिए से खुली है। अब हम माफी मांगते हैं, हमें लौटा दे अपनी दोबारा जिंदगी के अंदर, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कदम बढ़ाओ। अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की जमीनों को, औकाफ के मामले को अल्लाह हमारे हक में बेहतर बनाए, गैरों के पास जाने से हम सबकी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो